Hello students, today let's discuss the testis, primary sex organ in male. These testes, they are located in the pelvic region outside the body in a special pouch which is known as a scrotum. Okay, they are जो हमारी जो abdominal cavity है, तो जो abdominal है, abdomen के जो outside है वहाँ पर ये हमारे primary sex organs which are named as जिसको हम लोग testis बोलते हैं, वो वहाँ पर जो है ये located. Okay, outside the body. Here the reason behind that कि why they are located outside the body. इसका एक रीजन होता है कि ये क्यों बॉडी के जो है वो आउटसाइड जो है वो लोकेटेड होते हैं, बिकॉज फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए they have required a temperature less than that of the body temperature. Approximately 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो लेस टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है for the process of spermatogenesis, so they are located in the outside the body in a pouch which is known as the scrotum, and the cavity of the pouch is known as a hydrocele. उसको जो है हम लोग hydrocele बोलते हैं. इतना ही आप लोगों ने इसमें. Now internal structure of the testis. Now each testis, they are oval in shape, वो अंडाकार होता है शेप के बीच में, and with a width of 4.5, length 4.5 and a width of 2 to 3 centimeter. इतनी जो है वो इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, and these remain covered with a white fibrous tissue. These testes, they are covered by a protective layer, white fibrous tissue की बनी हुई वो layer होती है, that is known as the tunica alveolis. tunica alveolis. Now this tunica alveolis, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको डायग्राम बनाकर के जो है वो शो करना चाहूँगा. This tunica alveolis that produced inside, वो अंदर की तरफ को जो है वो टेस्टिस के बीच में जो है वो प्रोड्यूस्ड होती है. हाउ, हम लोग इसको अभी यहाँ पर पढ़ेंगे. ये जो है वो ये वाली लेयर, दैट इज द ट्यूनिका अल्वेजिनिया, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये व्हाइट फाइबर की बनी होती है. अब ये जो लेयर है, यही दैट इज प्रोड्यूस्ड इनवर्ड, ये अंदर की तरफ को इस तरह से जो है ये that is produced inward. So that divide whole of the testis into number of segments. ये पूरे जो testis है इसको जो है वो इस प्रकार से इस whole of the chamber को approximately 200 to 250 chambers के बीच में बांट देती है. That is known as a testicular lobules, जो है वो उसको हम लोग कहा जाता है testicular lobules. This white fibrous tissue which is known as the tunica alveolis. Okay, ये produced inward into the chamber of the testis, and that divide whole of the testis into the small chamber. ये जो एक chamber जो है वो बनता है, that is known as the testicular lobule. Okay, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ. Now each testicular lobule, ये जो अब एक लोब्यूल है, हम इसकी बात कर लेते हैं. एक लोब्यूल की, एक चैम्बर की बात हम लोग कर लेते हैं. That is further divided into 2 to 3
2 से लेकर के या 1 से लेकर के 3 तक जो है वो फर्दर इसमें जो है वो छोटे चैम्बर जो है वो इसके बीच में बनेंगे, which are known as the seminiferous tubule. Each testicular tubule is further divided into 1 to 3 seminiferous tubule. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये एक तरफ को ये 1 2 3 मान लो, ये 1 2 3 छोटे चैम्बर जो है वो इसके बीच में फर्दर बनते हैं, विच आर द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब हम इसका थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। नाउ दीस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, they are the actually it is the site of the production of a sperm, या हम ऐसा बोल सकते हैं site of the spermatogenesis। तो किस प्रकार से ये काम करते हैं, अब हम इसका जो है वो डिटेल टीएस, जैसे कि टीएस ऑफ टेस्टिस अगर हम काटते हैं तो ये हमें किस प्रकार से जो है वो दिखाई देंगे। तो बिलीव these seminiferous ovules, each seminiferous tubule that is formed of, बहुत सारे होते हैं ना, जैसे कि मैंने बोला कि एक जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है उसके बीच में जो है हम लोग 2 से 3 या 1 से लेकर के 3 तक जो है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ईच दिस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दे आर लाइंड बाय द जर्मिनल एपिथेलियम। बाहर इस प्रकार से जो है हम लोग ये जर्मिनल एपिथेलियम के सेल आपको देखने को मिलते हैं। एंड germinal epithelium along with a special kind of cells which are scattered here and there that are present in the germinal epithelium, वो germinal epithelium के साथ ही जो है वो यहाँ वहाँ जो है वो present होते हैं। Okay, then elongated cells, they are known as a sertoli or nurse cell। हम यहाँ पर बीच बीच में देख रहे हैं ब्लू कलर के, मैंने जो है वो इसके बीच में थोड़े elongated सेल जो है वो यहाँ पर बनाए हैं। These are the nurse cell। जो जर्मिनल एपिथेलियम है, they are responsible for the formation of, they undergo the spermatogenesis and that leads to the formation of sperms। इसको डायग्राम को हम साथ साथ में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट, जो आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रहे हैं, दे आर द जर्मिनल एपिथेलियम। These cells first, चलो अभी हम लोगों ने आगे करना है, फर्स्ट अंडरगो mitotic division and that leads to the formation of spermatogonia। से राउंडट मैं दूसरे कलर में जो है वो इनको आपको बना करके दिखाता हूँ। इस प्रकार से and which undergo then meiosis division, जिनके बीच में फिर meiosis division होता है, and they then transformed into sperms that leads to the formation of a sperm। So each
seminiferous tubule is lined by the germinal epithelium, and here and there in the germinal epithelium there are special kinds of cells which are known as a nurse cell और Sertoli cell जो है वो उनको कहा जाता है, which are responsible for provide the nutrition to the developing sperm. इनको मैं थोड़ा साइड में यहाँ पर लिखता हूँ, seminiferous tubule, seminiferous tubule. ओके, 1 2 3 seminiferous tubule यहाँ पर हैं, and जो seminiferous tubule that is composed of two types of, जैसे कि हमने बोला germinal epithelium, हम ऐसा लिखेंगे, they are composed of a germinal epithelium, germinal epithelium, जो germinal epithelium है that further constitute of two types of cell, ऐसे लिखेंगे germ cell and Sertoli cells. इनको हम लोग नर्स सेल भी कहते हैं, एंड जो जर्म सेल्स हैं नाउ दे अंडरगो मियोसिस, इनके बीच में मियोसिस होता है, एंड दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ. एंड ये जो सर्टोई सेल्स हैं they are responsible for providing the nutrition to the developing spermatozoa. जो स्पर्म इसके बीच में बन रहे हैं उनको जो है ये क्या प्रोवाइड करता है, that provide the nutrition. अब स्पर्म जो है यही सेल, जब इनके बीच में क्या होगा, मियोसिस होगा, तो they form the sperm. हम इसके बीच में अभी स्पर्म बनाएंगे, इस प्रकार से आप okay, so these are the sperms. इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टीएस जो है वो बनाएंगे. दिस इज द जर्मिनल एपिथेलियम. अब इसी के बीच में मैंने बोला कि क्या होते हैं जर्म सेल एंड स्पेशल काइंड्स ऑफ सेल, दे आर नोन एज द सर्टोलाई सेल्स. And these are the spermatozoa, which are formed in the seminiferous tubules. And the one more very important thing, that is this is the interstitial space, the space in between the this seminiferous tubules. ऐसे ये एक seminiferous tubule, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस प्रकार से इनके बीच का जो ये स्पेस है, this space, that is known as the interstitial space. In this interstitial space there is the group of polyhedral cells. यहाँ पर जो एक group of polyhedral cells जो है वो that is present here and there, scattered here and there. इस प्रकार से आपको एक पॉलीहेड्रल ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो देखने को मिलेगा. These cells of utmost importance, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो इन सेल्स की होती है. They are known as, जैसे इंटरस्टेशियल सेल्स जो है वो इनको कहा जाता है, या लीडिंग सेल्स या इंटरस्टेशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स. मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ साइड में. interstitial cells or Leydig cells. These cells, they are responsible for the secretion of hormone. ये cells जो है Leydig cells जिसको हमने बोला, या interstitial cells जिसको हमने बोला, they are responsible for the secretion of
हार्मोन विच इज नोन एज अ एंड्रोजन। एंड्रोजन सीक्रेट करते हैं मोस्टली टेस्टोस्टेरोन। ओके, अब एंड्रोजन इज नॉट अ सिंगल सेल, इट इज अ क्लास ऑफ सेल्स, मतलब ये बहुत सारा ग्रुप ऑफ सेल जो हम जिसको बोलते हैं, उसमें से जो मोस्टली जो उसमें से कौन सा हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन जो है वो ज्यादा मात्रा में जो है इन लेडी सेल्स के द्वारा जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। एंड दिस हार्मोन, तो लेडी सेल्स हम ऐसा भी बोल सकते हैं, दीज आर एंडोक्राइन इन फंक्शन, एंडोक्राइन इन फंक्शन, so they are responsible for the secretion of hormones, क्योंकि हार्मोन जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो है वो सीक्रेट होते हैं, तो इसलिए हम ये बोलेंगे कि these are endocrinal in functions responsible for the secretion of androgen, mostly testosterone, and this testosterone is responsible for the development of primary sex organ, primary secondary sex organs in the male, as well as responsible for the formation of sperm. Okay, understand? This is the structure of internal structure of the testis. Okay, students, now let's discuss the ovary. Let's discuss the ovary. This is the primary sex organ in female. Ovaries, these are located in the pelvic region. This and a pair of ovaries which is present in the pelvic region. There is a little bit difference in between the primary sex organs of male and female. जो male का जो primary sex organ है, that is located outside the body, but these ovaries, they are located in the abdomen, in a pair along the sides of the uterus. ये uterus के दोनों तरफ जो है वो एक एक जो है वो पाई जाती है toward the dorsal body wall, पीठ की तरफ को, toward our back, and they remain in their position. जैसे कि मैंने बोला जो यूट्रस होता है, this is the position of the ovary. This is the position of the, ये यूट्रस है हमारा, और यूट्रस के दोनों तरफ जो है वो ओवरीज जो है वो लोकेटेड होती है टुवर्ड द डोर्सल बॉडी वॉल. ओके, एंड दे आर हैंग इन देयर पोजीशन विद द पेल्विक वॉल, जो पेल्विक रीजन की जो बॉडी वॉल है उसके साथ, और यूट्रस के साथ ये जुड़ी होती है विद द डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम. जो पेरिटोनियम लेयर होती है उसी के जो डबल फोल्ड है उसके साथ जो है दैट रिमेन अटैच्ड विद दिस पेल्विक वॉल एंड यूट्रस के साथ जो है वो जुड़ी रहती है. ओके, एंड now let's discuss the internal structure of the ovary. Each ovary, okay, diagram भी हम साथ में बनाएंगे. Each ovary is lined by, diagram हम बना लेते हैं थोड़ा सा इसका. अभी बच्चे ध्यान से देखेंगे किस प्रकार से इसका जो है वो डायग्राम हम लोगों ने बनाना है. Each ovary is lined by the, जैसे ही कोवाइडल सेल्स, जर्मिनल एपिथेलियम, बहुत सारे सेल्स बनेंगे, हम उसको जस्ट एक लेयर जो है वही यहाँ पर बनाएंगे. जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर हम लोगों ने यहाँ पर बनाएंगे the layer of germinal cells.
These are cuboidal cells. Okay. This is a germinal epithelium. Now the whole of this ovary, which is divided into the two parts. जो internal of this ovary, जितना भी internal lumen है ovary का, that is divided into two parts. दो भागों में हम इसको बांधते हैं. Outer cortex and inner medulla. दो भागों में हमने इसको बांधा. जो आउटर कोर्टेक्स है, दैट इज फॉर्म्ड ऑफ रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू. ये आउटर कोर्टेक्स वाला पार्ट जो है, मान लो दिस इज द आउटर कोर्टेक्स. इतना सा हम लोगों ने बनाया कि दिस इज द आउटर कोर्टेक्स, दैट इज फॉर्म्ड ऑफ रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू and inner medulla, that is formed of, जो inner इसका medulla है, that is areolar connective tissue, and in between the germinal epithelium and outer cortex there is a layer of another layer. यहाँ पर जो है वो होती है यहाँ green but not fully developed, which is known as a tunica alveolia. इन दोनों के बीच में एक लेयर जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, tunica alveolia, not fully developed. And this is the cortex. Outer is known as a cortex, and the inner of this ovary is known as a medulla. जो ovary है, that is differentiated into two parts, cortex and medulla. Okay, इनके बारे में हो गया. Now we found that in the medulla, actually होता क्या है कि जो germinal epithelium के जो cells होते हैं, first they undergo repeated mitotic division and then they forms a bunch of cells in this cortex which is known as a egg nest. ये आपकी NCERT की बुक में ये नहीं है ये सारा. And then this egg nest is changed into a tube-like structure which is known as a egg tube, जिसको हम लोग बोलते हैं. ये सारी चीजें जो है वो आपकी NCERT की बुक में नहीं है कि this egg nest and egg tube, such type of structure, they are not in your NCERT book. Then in the medulla, जो इसका जो medullary region है, here we can find out the different kinds of, हमें यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो प्राइमरी फॉलिकल होती हैं, primary follicles, they are present in this medullary region, but they are in their different stages of development. Different stages of development. These primary follicles which are present in the, ये जो germinal epithelium है, they are responsible for the formation of a primary follicle. यही जो है वो primary follicles बनाते हैं. तो जब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ओवरी का, तो जब ये चीजें लिखी नहीं जाएंगी सारी के किस प्रकार से बनाते हैं क्या चीज, वो एक अलग टॉपिक है. लेकिन यहाँ पर जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी पढ़ेंगे तो हम सिंपल सा कि जो
आलमंड शेप की होती है, ये ओवरी जो है वो बादाम के आकार की होती है, एंड इट इज सॉलिड, ये सॉलिड होती है, एंड इट इज लाइंड बाय द जर्मिनल एपिथेलियम, और जो इसका बाहर वाला सारा पोर्शन है दैट इज लाइंड बाय द जर्मिनल एपिथेलियम, एंड द इनर ऑफ द ओवरी, जो इसका जो अंदर वाला भाग है ओवरी का, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आउटर पार्ट इज नोन एज कॉर्टेक्स, एंड जो वाला जो भाग है दैट इज नोन एज द मेडुला। कॉर्टेक्स जो है वो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, और मेडुला जो है वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ओके, इन द मेडुला, जब हम इस मेडुला को यहाँ पर ध्यान से हम लोग देखते हैं, देन वी कैन फाइंड आउट द प्राइमरी फॉलिकल्स। यहाँ पर हम लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो प्राइमरी फॉलिकल जो है वो देखने को मिलती है एट देयर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। वी कैन सी द these primary follicles, they are in their different stages of development. ये जो primary follicle होती है that is that can have the egg in it, इसके बीच में egg जो है वो बनता है, और वो different stages that remains surrounded by a number of cells which are known as the follicular cells. इसके चारों तरफ जो सेल्स होते हैं, बीच में एग बनेगा इसमें, और चारों तरफ जो है वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स व्हिच आर नोन एज द फॉलिकुलर सेल्स, इनको हम लोग फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। तो ये जो अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती है, बिकॉज सिंगल दिस ग्राफियन फॉलिकल, these are known as the ग्राफियन फॉलिकल, जो ये बनती है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, और यहाँ पर ये मैच्योर हो गई। तो पर मंथ जो है एक ओवरी के बीच में जो है वो एक ही जो ग्राफियन फॉलिकल है वो तैयार होती है, बन करके तैयार होती है। एंड यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर भी सर ग्राफियन फॉलिकल जो है, जो एग जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाता है, ये तभी हमने बोला कि वी कैन फाइंड आउट इन द मेडुला प्राइमरी फॉलिकल्स एट देयर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो दिस इज नोन एज द सेकेंडरी साइट, एंड यहाँ पर हम इसको लिखेंगे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, mature graphian follicle. And now this mature graphian follicle which consists of a egg जो है वो secondary oocyte की जो secondary egg is known as secondary oocyte। क्यों इसको हम ऐसा बोलते हैं, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको पढ़ेंगे। That is released from the ovary. This is the secondary oocyte, यानी कि egg जो है वो रिलीज कर दिया गया है। And these follicular cells, मैंने बोला कि जो ग्राफियन फॉलिकल होती है हमारी, that remains surrounded by a number of cells. Now it is known as the empty graphian follicle. ये इस प्रकार से मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, empty graphian follicle, and this is the mature graphian empty graphian follicle, and also known as the yellow body. Yellow body, or very important, corpus luteum. This empty graphian follicle which is present in the cortex region, ये मेडुला के बीच में आप कितना लिखेंगे, और जो cortex region के बीच में after the release of this egg, empty graphian follicle is present, which is again जो endocrine in function, जो corpus luteum हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, that is endocrine in function, and it is responsible for the secretion of female sex hormone. उसके लिए जो है ये फीमेल सेक्स हार्मोन जो है वो रिलीज करता है हमारा कॉर्पस ल्यूटियम, या जो येलो बॉडी है। यहाँ पर जो एक और चीज मैंने बताई कि ये फॉलिकुलर सेल्स ये है, इसके बीच में ही बना रहा हूं मैं, फॉलिकुलर सेल यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, दे आर अगेन एंडोक्राइन इन फंक्शन। ये सेल जो है ये भी जो है वो एंडोक्राइनल इन देयर फंक्शन। तो ओवरी के बीच में हम लोगों ने दो चीज पढ़ी, एक जो कार्पोस ल्यूटियम है
ये भी हार्मोन्स के, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स ट्रीट करता है, अभी हम पढ़ेंगे इसको आगे चल करके। और जो फोलिकुलर सेल्स होते हैं, ये एस्ट्रोजन हार्मोन को जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसकी सिक्रीशन। तो डिफरेंट हार्मोन्स हैं, इनका अलग अलग फंक्शन है, वो हम आगे इसको चल करके पढ़ेंगे। These are the blood vessels, blood supply, blood vessels. Okay students, तो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी। तो हमने दोनों चीजें जो हैं वो आज पढ़ी, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी। तो ये दोनों जो हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इम्पोर्टेंट है दोनों ही। तो आप इसको ध्यान से जो है वो पढ़ेंगे। थैंक यू।